Good morning, everyone, and welcome to today's webinar on what next after graduation. ये बहुत बड़ा सवाल होता है स्टूडेंट्स के मन में कि ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है. Before we get started, I would like to give a snapshot of the career counseling and placement cell. This cell continues to engage the students in various informative career-oriented sessions, panel discussions, one-on-one session to enhance the students' competencies in self-knowledge, educational and occupational exploration and career planning. Specific inputs are given to the students regarding career choices mapped and aligned to their passions, which would help the students to fulfill their career goals and serve as a bridge between their college experience and employment or graduate school, helping them apply what they have learned. Moreover, choosing the right career is one of the most crucial decisions of a student's life. And here, the Career Counseling Cell helps to create awareness among students so that they are in position to make informed choices regarding their career options. With this, now I would like to introduce our resource person of the day, Dr. Nidhi Singhi from District Bureau of Employment and Enterprises, Ludhiana. Dr. Thank you so much, sir. Yeah, Dr. Nidhi holds a doctorate in psychology. She has published her research in journals of repute and presented her research papers at national and international platforms. She has been continuously guiding the students to choose their career in a better way. And today, she is among us to guide our students to take the right choice for their career. I welcome you, ma'am, in today's webinar. Now, I would Thank you so much, sir. Now, I would formally request our worthy principal, Madam Dr. Savita Uppal, to welcome our resource person of the day. Thank you, Rohitji. Good morning, all. I, on behalf of management and staff, welcome you all. Arya College Ludhiana endeavors to be a tower of strength to help and guide students from the dimness of ignorance towards the brightness of knowledge. Therefore, we always intend to help our students to establish a linkage with the world of work and career opportunities in a highly competitive professional domain. The Career Counseling and Placement Cell of our college addresses both the academic and career concerns and opportunities to students to make them confident to perform better in their professional domain. Today's webinar is organized by IQAC, Career Counseling Cell of Arya College, under the guidance of ADC cum CEO DBEE Shri Sandeep Kumar Ji, to update our students about various facilities provided by District Bureau of Employment and Enterprises. Along with the process of registration on Punjab Ghar Ghar Rozgar Karobar Mission, about the steps and strategies followed for preparation of competitive exams, goal setting and time management techniques, tips to face virtual interviews, various placement options available after COVID-19, and above all, what the students can do after their graduation. There would be a series of lectures on the same topics for the students of all the streams, that is arts, commerce, computer science, BSc, for providing all this knowledge to our students. Dr. Nidhi Singhi, Career Counselor, District Bureau of Employment and Enterprises is here with us. I welcome you, ma'am. Thank you so much, ma'am. She'll speak on the topic, what next after graduation? And thanks a lot for sparing your valuable time. Thank you all. Thank you. Thank you so much, ma'am. And first of all, really, I would like to appreciate your effort that in such a short duration of time, you conduct such a good session with me and the mediator between me and the students. And next, I would like to thank ma'am अलवाले जी जिन्होंने बहुत ही short duration में just मैंने उनसे 5 minutes बात की and she gave me a session with that. Thank you, Nidhi ji. Yes, this is a time where students feel that
what next, they do graduation, but after graduation the friends they are going in the master domain and we are going in the same track. तो ऐसा नहीं है. आज इस सेशन में हम सभी डाउट्स आने वाले टाइम के जितने भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर दोज एग्जाम्स, what strategies we have to follow for the preparation of competitive exams. ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਐਂਡ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ. ਬੇਟੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 ਕੀਤਾ ਸੀ, +2 ਆਰਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟਲੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ BA ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਆਪਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਔਰ SSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗੇ. I don't know ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ. ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ. ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, कोई दसदा है क्वेश्चन कर रहा है कि मैम व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन. इसका मतलब कि अभी जो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन का क्वेश्चन मार्क है वो तब लगता है जब वी आर नॉट फिक्स्ड विद आवर एम्स. सो हमने क्या करना है आज की डेट में इन सब चीजों को जानना है. सो यू ऑल आर हैविंग अ कॉपी एंड पेंसिल विद यू. Even I must write few things on the chat box. मैं जरूर mention करांगी. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ competitions है ਇਹ 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ. ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਰਾਈਟ. ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ. सेकेंड वन इज रीजनिंग. मैं अभी इन कंपोनेंट्स की डिटेल डिस्कशन हम जरूर करेंगे. रीजनिंग. थर्ड वन इज इंग्लिश एंड फोर्थ वन इज जीके जिसको हम जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज बोलते हैं. बेटा ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ +2 ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ. NTPC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ. ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ? 25 marks of quants, 25 marks of English, 25 of reasoning and 25 of GK. So ये components cover होते हैं हमारे रेलवेज के एग्जाम में. अगर हम SSC के एग्जाम्स की बात करें तो +2 के बाद CGL और CHSL का फॉर्म फिल होते हैं. अभी लास्ट डेट 31 जनवरी निकली है फॉर CGL एग्जाम. अगर हम CGL की बात करें तो इसमें बेटा टायर्स होते हैं, टायर 1, टायर 2. टायर 1 में भी क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग जिनका क्वालिफाई होता है वो फर्दर टायर 2 में जाते हैं जिसमें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन साइमल्टेनियसली एड अप हो जाती है. अगर हम बैंकिंग की एग्जाम की बात करते हैं तो बैंकिंग के एग्जाम की क्या डिमांड क्या होती है? बैंकिंग के कोई भी एग्जाम है बेटा 3 कंपोनेंट्स में बैंकिंग का एग्जाम फॉलो होता है, जैसे कि PO, बैंक PO, बैंकिंग SO, बैंकिंग क्लर्क. सो ये 3 कंपोनेंट्स में बैंकिंग के एग्जाम आते हैं. PO प्रोबेशन ऑफिसर, SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंड क्लर्क. तो इन एग्जाम्स का जो कंपोनेंट है उसमें प्री के पेपर में क्या आता है? क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश. ये तभी मैंने 4 डोमेन्स हैं वो एक साइड पे मेंशन कर दिए. क्यों मेंशन किया है कि कल अगर हमने प्रेपरेशन करनी है, हाउ वी कैन स्टार्ट द प्रेपरेशन विद द कॉमन टॉपिक्स जो कि आने वाले टाइम के हर कंपटीशन की एक डिमांड होती है. सो जो बच्चे बैंकिंग का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो उनको प्री के पेपर में 35 क्वेश्चन क्वांट्स के आएंगे, 35 रीजनिंग के आएंगे और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे. पर जितने भी बेटा कॉम्पिटिशन्स आते हैं ये स्पीड टेस्ट होते हैं. स्पीड टेस्ट क्यों होते हैं? तो द रीजन है कि 35 क्वेश्चन टू बी कवर इन 20 मिनट्स. तो ये टोटल जो पेपर प्री का होता है ये 100 मार्क्स का होता है, जो कि हमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 1 घंटे में कवर करने होते हैं. तो हमें जब भी एग्जाम देना है तो हमें अपने शॉर्टकट्स, उन शॉर्टकट्स को कैसे अचीव करना है हमने उस चीज को ध्यान देना है. और जब मेंस की बात करें तो मेन में बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस,
जनरल नॉलेज और डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट आपका एड अप होता है जब हम मेंस की बात करते हैं। सो इस तरीके से बेटा एग्जाम्स का एक फॉर्मेट बनता है। हमारा इस टाइम पे जानने का विषय क्या है, मैंने क्यों इस ड्यूरेशन में, ये जो कोविड सिचुएशन आया इसमें क्यों मैंने और सभी कॉलेजेस के साथ करियर काउंसलिंग सेशन करना राइट समझा, क्योंकि बच्चे दे आर सिटिंग एट होम and they are not utilizing their time in a productive manner. They are just playing games on Facebook, on Instagram, on WhatsApp, so many different things they are doing. But are we utilizing our time in a productive manner? For that we have to invest our time and we have to think for our future. That's why I'm having such sessions during this time period, बिकॉज आई नो दैट आपका आने वाला टाइम में 15 से एग्जाम स्टार्ट है और जो एग्जाम का मोड है वो भी ऑनलाइन है। जब ऑनलाइन मोड होता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स दे फील रिलैक्स कि ऑफलाइन में हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है इन स्पाइट ऑफ की ऑनलाइन एग्जाम, बिकॉज वी हैव टू सिट एट होम एंड वी हैव टू डू थिंग्स। बट बेटा इस टाइम ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूटिलाइज करना है। सो क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके, ये देखो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया कि बैंकिंग में भी आ रहे हैं, ये एसएससी में भी आ रहे हैं, ये सीजीएल में भी आ रहे हैं और ये रेलवेज में भी आ रहे हैं। और इनकी हम बात करते हैं। आप में से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हो सकता है इनमें से कई बच्चों का ऑप्शन मैथमेटिक्स हो, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है, कोई बच्चा ऐसा जिसने स्टैटिस्टिक्स ऑप्ट किया हुआ है, या कुछ बच्चे हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ये कॉमन डोमेन्स है बेटा। व्हेन आई एम हैविंग अ ग्रुप करियर सेशंस, तो ग्रुप में मैं ओवरऑल पिक्चर बच्चों को जस्ट दे देती हूँ। बट व्हेन द स्टूडेंट वांट टू हैव अ सेशन विद मी और द इंडिविजुअल काउंसलिंग, सो उसमें हम बच्चे के अकॉर्डिंगली उनको करियर गाइड करते हैं। सो फॉर दैट इफ यू वांट माय नंबर टू बी विद यू, आई विल शेयर माय नंबर. You can write, it's 98728 08647. 98728, I mentioned it in the chat box. It's 98728 08647. So any student want one-to-one interaction and career counseling session with me, they just send one message to me, drop one message on WhatsApp or text that I need a career session with you, ma'am, so that when I'm having time, I will fix time with you definitely. Secondly, I'm sharing few another options with you. I'll defining few facilities of District Bureau of Employment with you. बेटा जो District Bureau of Employment है, ये हमारा ऑफिस प्रताप चौक में है, कॉर्नर वाली बिल्डिंग। एवरी फ्राइडे वी आर हैविंग प्लेसमेंट कैंप, एवरी फ्राइडे। सो आपने जब भी अपनी क्वालिफिकेशन अटेन कर लेनी है, या आपको लगेगा कि हमने अर्निंग के साथ लर्निंग करनी है, जॉब के साथ अपना वर्क करना है, यू कैन you all are welcome at District Bureau of Employment. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਜੌਬ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ਕੀ जॉब रोल्स आ रहे हैं? For that we are having a Facebook page. The page का नाम है District Bureau of Employment and Enterprises लुधियाना के नाम से. You can join that page. You can share your like and share the page so that in future you can get the notification. Moreover, what another facility I'm having, I made the WhatsApp groups. WhatsApp groups मैंने इसलिए बनाया, the students who won't have the habit to read the newspaper on daily basis. So I may provide you the information regarding the government job notifications in that group. मैं circulate करती हूँ. In Ludhiana district right now, I'm having 42 to 43 groups with me. जिसका एडमिन एक्सेस इज विद मी, सो दैट कि जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो मैं उस ग्रुप में शेयर करती हूँ। मोर ओवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने, गवर्नमेंट ने एक मोर इनिशिएटिव लिया जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रन हुई। सो बीइंग द नोडल ऑफिसर ऑफ दैट वेरी कोचिंग, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है for the preparation of competitive exams, तो बेटा तुसी मेरे नाल contact कर सकते हो। You have my number. Even when we start the next batch, I will definitely share the information in your WhatsApp group with your teacher concerned, Rama ma'am, so that the students who are willing, wish to prepare for the competition, and they can sit at home, they can do preparation online.
सो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत जल्दी जब नेक्स्ट बैच का अरेंजमेंट स्टार्ट होगा तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करूँ। इन एडिशन टू दैट, आपने से जो बच्चे यूपीएससी बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज दे एग्जाम दी जेड़े बच्चे बेटा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है, बिकॉज ह्यूमैनिटीज ग्रुप में बच्चे इकोनॉमिक्स भी रखते हैं, तो बेटा जिनके पास फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में होती है, तो बेटा एक यूपीएससी बोर्ड का पेपर आता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का पेपर आता है यूपीएससी का, जो कि 1000 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि 4 डोमेन्स जो कवर होते हैं वो आपके इकोनॉमिक्स के पैटर्न के कवर होते हैं। ये मैं कॉमन इसलिए बता रही हूँ ताकि अभी से आपका माइंड चलना शुरू हो जाए कि हमारे पास फ्यूचर के पास हम क्या क्या कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली वही सिलेबस को उठाओ और उसके अकॉर्डिंगली अभी से अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो कि हमने ये पेपर को अचीव करना है। सी बेटे जो गवर्नमेंट की गस्टेड पोस्ट होती है ना, इफ यू वांट टू अटेन दैट पोस्ट, तो आपको अभी से उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद अब सारे बच्चे यूपीएससी और पीसीएस मतलब पीपीएससी बोर्ड के थ्रू जेडे एग्जाम्स होंगे सिविल सर्विसेज या पीसीएस एग्जाम की भी प्रिपरेशन ऑन दी डेट कर सकते हो। द स्टूडेंट हु इज हैविंग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने हिस्ट्री का पार्ट कवर किया होता है, पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट कवर किया होता है, दे जस्ट हैव टू रिवाइज द थिंग्स। तब बेटा जेड़ा पीसीएस दा सिलेबस चकोगे, जेड़े बच्चे बीटेक करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं या उस तो बाद नॉन मेडिकल वाले बच्चे तैयारी करते हैं, उन्हां लई ते एक न्यू डोमेन है, बट तुहाडे लई ओही चीज़ां जो ऑलरेडी तुसी करदे आ रहे हो, बट यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम पीरियड फॉर दैट। अगर किसी कैंडिडेट का यूपीएससी का माइंड सेट है कि हमने प्रिपरेशन करनी है, आपको पता है हर साल ये एग्जाम आता है और ग्रेजुएशन के बाद आप एलिजिबल हो। द स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर के मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो फाइनल ईयर के जुड़े हुए हैं, दे आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट दिस टाइम। क्या करना होता है कि 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज को डू रिवीजन ऑफ दैट, उसकी रिवीजन का बना ले। लक्ष्मीकांत की बुक आती है बेटा इंडियन पॉलिटिक्स की, रिवाइज दैट बुक। साथ में साडा पंजाब की बेटा सीरीज आती है, साडा पंजाब की बुक आती है, ओनू रिवाइज करो। +1 +2 की बुक आती है पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, डू रिवाइज दैट बुक ऑल्सो। और सी सेट के लिए जो पेपर 2 है जनरल स्टडीज के बाद जो पीसीएस में पेपर 2 है, उसमें क्वांट्स एंड रीजनिंग ही आती है। सो अभी के लिए जो आपका स्ट्रेटजी ये होना चाहिए, चाहे अभी आपके माइंड में कोई भी कंपटीशन का माइंड नहीं है, what you all have to do, you just revise, you just have to practice the quantitative aptitude. What is that? जो चीजें आपने 10th तक रिवीजन की है, 10th तक किया है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, ट्रेवल, स्पीड, डिस्टेंस, सो इन तरह के जो भी टॉपिक्स आपने किए हैं, यू हैव टू रिवाइज। यू जस्ट टेक वन बुक, RS अग्रवाल दी बेटा बुक, आई रिकमेंडेड दैट बुक। द रीजन बीइंग उस पर्सन ने कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जो छोड़ा हो, और कई बार ऐसा होता है कि पूरा पूरा पेपर उसकी बुक में से एज सच आ जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, इसमें 39 चैप्टर्स आर देयर, सो 39 चैप्टर्स का डेली का प्लानर बनाए फॉर 1 चैप्टर अ डे। एक दिन में आपने 3 चैप्टर, 2 चैप्टर नहीं करने, उसमें से एक चैप्टर ही करना है। 15 क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स का, 15 क्वेश्चन देखकर सॉल्व करो, 30 क्वेश्चन रैंडमली बिना देख के सॉल्व करो। सो डू प्रैक्टिस ऑन एवरी डे, सो दैट कि आपका एक फियर फैक्टर, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में फियर फैक्टर है, वो उनका निकल जाए। इन एडिशन टू दैट, अगर आपको लगता है कि आपके पास और भी टाइम है, डू प्लीज बेटा अपना माइक म्यूट कर लो। जिन बच्चों को लगता है कि उनके पास थोड़ा और एडिशनल टाइम है, या आज हमारा RS अग्रवाल का चैप्टर कवर हो गया, तो आपने वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक उठाएं। व्हाट इज रीजनिंग बेटा? मेंटल एबिलिटी। अगर तुसी बेटा बच्चे माइक म्यूट ही रखो बच्चे अपना। किंग इज किंग, हु इज ही, प्लीज इन्हों म्यूट रखो। यस, जिन बच्चों का माइंडसेट है कि हमें लगता है हमारी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, व्हाट इज रीजनिंग, व्हाट रीजनिंग कवर्स? रीजनिंग में बेटा मेंटल एबिलिटी आती है, जिसमें कि सीरीज, ब्लड रिलेशन,
सीक्वेंस के क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन या फिगर्ड फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि हमारा मेंटल लेवल, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी मेमोरी मेकअप्स चेक होती हैं। ये हमारा कॉग्निटिव डोमेन को चेक करने के लिए टेस्ट बनता है रीजनिंग का। सो हमने इसको भी कवर करना है। इसके साथ साथ व्हाट वी हैव टू डू, हमने इंग्लिश जो हमारा रूटीन में आपका इंग्लिश की ग्रामर की बुक्स हैं, हम डोंट डू रोट लर्निंग। आपने क्या करना है, ऑन डेली बेसिस यू हैव टू रिवाइज वन टॉपिक। चाहे आप एडवर्ब एक दिन तो प्रैक्टिस करो, चाहे नाउन को करो, Students, please mute yourself. So the student who won't have interest, kindly exit from this group. मोर ओवर आप में से जिन कैंडिडेट्स का माइंडसेट है तो वो क्या करें, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन बेटा आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे करें। एंड मोर ओवर बेटा ग्रेजुएशन तो बाद पटवारी ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਪੇਪਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲਚਰ ਦੇ 5 क्वेश्चन आने हैं, पंजाबी ਦੇ 5 क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश ਦੇ 5 क्वेश्चन आने हैं, मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 15 क्वेश्चन आने हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो 100 मार्क्स का कंपोनेंट है, अभी से थोड़ा थोड़ा रिवाइज दोस थिंग्स कि हमने ये इस तरह के पेपर्स को क्रैक करना है, क्लियर करना है। कई बच्चों का माइंडसेट ये होता है कि मैम हमने यूपीएससी भी करना है, पर हम अपनी लाइफ में जल्दी सेटल भी होना चाहते हैं, पर हमें गवर्नमेंट डोमेन के बारे में भी पता चले। यस, पटवारी दे पेपर दी खोल गल दसदा बेटा, ओदी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन प्लस 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स। गवर्नमेंट दे बहुत सारे ऐसे इस तरह के एग्जाम्स हैं जिदे च की रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन दे नाल 120 आवर्स दा कंप्यूटर दा कोर्स होना जरूरी है। तो उस टाइम ते बच्चे की करते हैं, वो प्राइवेट किसी डोमेन तो 2-3 हज़ार रुपया देके सर्टिफिकेट्स बना देंगे हैं बेटा, ओदा कोई भी यूसेज नहीं है। जिवें बेटा तुहाडी क्वालिफिकेशन डन होएगी, तुसी किसी भी गवर्नमेंट अदारे तो ISO सर्टिफाइड 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स जरूर करना है, बिकॉज जिहड़ियां चीज़ां बेटा साडी एलिजिबिलिटी नूं कवर करनगियां, वी हैव टू डू दैट। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मैम हमें क्लैरिकल जॉब्स के बारे में बताओ। तो क्लैरिकल जॉब्स में क्या होता है बेटा, पंजाब गवर्नमेंट की अगर क्लैरिकल पोस्टें निकलती हैं तो उसमें हमें पंजाबी टाइपिंग रिक्वायर्ड होता है। SSC दियां बेटा पोस्टां निकलदियां स्टेनो दियां, तो ओदी रिक्वायरमेंट होंदा, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक हिंदी का स्पीड टेस्ट होता है, एक इंग्लिश का स्पीड टेस्ट होता है, जिसमें कि इन 1 मिनट यू हैव टू कवर 80 वर्ड्स। तो हमारी ग्रेड C ऑफिसर की पोस्ट बनती है। अगर 1 मिनट में 90 वर्ड्स होते हैं तो ग्रेड D की पोस्ट होती है। सो इस तरीके से हम अपनी जो पोस्ट की एलिजिबिलिटी के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लर्न हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, पंजाबी टाइपिंग। सेंटर दियां क्लैरिकल पोस्टां निकलदियां, हिंदी टाइपिंग इज रिक्वायर्ड, सो लर्न दैट। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਲਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈਟਿੰਗ ਐਪਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਲਰਨ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਕਰਾਏ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫਾਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਰਿਨਿਊ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बेटा गवर्नमेंट जॉब लेनी डिफिकल्ट नहीं है, पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੌਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਰਹੇ हैं ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੋਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਪਈਆਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, you can register yourself at this portal. It's www.pgrkam.com.
ये बेटा पंजाब घर घर रोजगार एंड कारोबार मिशन ये पोर्टल है डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। इस पोर्टल एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पोर्टल है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ जिन्ने भी गवर्नमेंट जॉब्स है और प्राइवेट डोमेन्स ਦੇ ਵਿੱਚ जॉब्स है ऑलरेडी अपलोडेड है। ये अपडेटेड मॉडिफाइड पोर्टल है। अगर ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ आज ਦੀ ਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਅ ਜੌਬ ਸੀਕਰ। नो मैटर्स कि ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, BA ਫਾਈਨਲ ਪਰਸੂਇੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ OTP ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ मैम उत्थे OTP आ ही नहीं रहा सी मैम। कल मैंने 2-3 बार रजिस्टर किया था मैम, मैंने अपने 2-3 अलग-अलग नंबर एक बार फिर से देख लेना। उसके साइड पर ना एक होम पेज है, उसमें गाइडलाइंस है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। सो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ना आप यू कैन चेक फ्रॉम दैट। उसमें ऑलरेडी अगर नहीं हुआ होगा तो आप आज की डेट में कर लेना। समटाइम ये होता है कि पोर्टल हैवी हो जाता है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि वो पोर्टल नहीं चल रहा। द कैंडिडेट्स आर गोइंग गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड एट दैट पोर्टल। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है? ग्रेजुएशन बेस पर जॉब थी मैम, 12th बेस पर थी ही नहीं कोई। ग्रेजुएशन बेस पर होंगी उसके ऊपर, क्योंकि वो जितनी बेटा जो प्राइवेट डोमेन्स है कंपनीज है ग्रेजुएशन बेस पे जॉब मांगती है। ठीक है, हुण जिवें रेलवेज दी इस टाइम पोस्ट नहीं निकली, SSC दी निकल चुकी है तो नहीं होंगियां, पर जिस टाइम रेलवेज दी पोस्ट आएगी या SSC दी आएगी वो नोटिफिकेशन उसते ऑलरेडी गिवन होएगा। सो इस तरीके नाल यू कैन चेक बेटा फ्रॉम दैट पोर्टल आल्सो। जेडे बच्चे न्यूज़पेपर रीडिंग दी नहीं हैबिट ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ पोर्टल ਤੋਂ चेक कर सकते हो। बट आई मस्ट सजेस्ट कि कोई भी गवर्नमेंट का बेटा एग्जाम आता है उसमें 2 डोमेन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज आपका चेक होता है बेटा कॉन्फिडेंस। एक तो आप राइटिंग टेस्ट कवर करते हो, जो सेकंड डोमेन है, एक सेकंड बेटा मैं कवर कर दूं इस पॉइंट को। सेकंड डोमेन को हमारा होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपकी 2 चीजों से आता है। एक तो हम रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, जो सेकंड राउंड होता है वो हमारा इंटरव्यू का होता है बेटा। इंटरव्यू में अगर हम गवर्नमेंट डोमेन में कहीं पर भी जाते हैं तो पैनल एक्सपर्ट में कोशिश होते हैं कि IAS ऑफिसर्स होते हैं। अगर हम प्राइवेट डोमेन में होता है तो HR मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बीच में कवर होता है। सो उन्होंने क्या देखना होता है, उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, जो कि होता है इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम नंबर 1 द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जिस पोस्ट के लिए आप गए हो क्या आपके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी लाइफ में कोई भी जॉब लेने जाओगे तो उसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सेकंड कंपोनेंट पता होता है इंपॉर्टेंट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। Sometimes we are having the knowledge but we won't able to express themselves better in front of the another person। तो उसमें क्या होता है कि बेटा कहीं ना कहीं हमारी जॉब हमारे हाथ में नहीं रहती। बिकॉज ये बात मैंने देखी है डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो में, जब एम्प्लॉयर्स आते हैं, कंपनीज आती हैं एंड दे आर हैविंग द डिफरेंट जॉब रोल्स, जो हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं समटाइम्स दे आर हैविंग अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन बट दे वोंट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ बेटर। समटाइम्स दे आर हैविंग द जस्ट हैविंग द डिग्री बट वोंट हैव द नॉलेज। तो ऐसा हमने नहीं करना। जब भी कोई जॉब रोल आएगा हमें उसकी नॉलेज और एक एडिशनल जो स्किल नॉलेज है दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। ये जानना आपके लिए जरूरी है। लुधियाना में PSDM डिपार्टमेंट्स है बेटा, पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन। लुधियाना में PSDM के डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो के साथ बेटा मर्ज है। इसमें क्या होता है कि बच्चे साइमल्टेनियसली विद द नॉलेज ऑफ देयर डिग्रीज जो वो कर रहे हैं, पर साइमल्टेनियसली एडिशनल स्किल रोल वो सीखते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आपकी जैसे ही क्वालिफिकेशन कवर होती है एंड यू रियली वांट टू नो सर्टेन स्किल्स तो आप एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना। अदरवाइज मैं आपको PSDM के डायरेक्टर का भी कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगी, मैं रोहित सर के साथ शेयर कर दूंगी, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर किसी भी बच्चे ने बेटा ड्यूरिंग द कोर्स +2 ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ 2 to 3 months ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि what else you have to done for the department, for the organization। अब एक बच्चा BCom किया हुआ है
पर अकेला बीकॉम की डिग्री इतनी मैटर नहीं करती। तो वी आर हैविंग जीएसटी कोर्सेज, अकाउंट्स के कोर्सेज, टैलीज के कोर्सेज। तो ऐसे कोर्सेज हैं जो कि बच्चों को इन फ्यूचर में भी काम आते हैं। यस, जो आप में से बच्चे प्रेपरेशन करना चाहते हैं उन्होंने तो मैं जरूर कहांगी कि तुसी हुण तो RS अग्रवाल दी बुक ले लो। वेदर यू वोंट हैव मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इन योर ग्रेजुएशन हार्डली मैटर्स, पर आने वाले टाइम का कोई भी कंपटीशन आएगा तो ये उसका पार्ट होगा। उसमें व्हाट यू हैव टू डू, जहां पे आप अटकोगे, अभी तो आपके पास इतने ट्रेन्ड एक्सपर्ट टीचर्स हैं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। जिन बच्चों ने अपना करियर बनाना, बेटा विलिंगनेस उनकी होनी चाहिए। वी आर देयर टू गाइड देम। हम एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, बट आधी रात को वही बच्चा बुक उठा खोलेगा जिसका एम होगा। सो जब तक आपकी विलिंगनेस नहीं होगी, नोबडी एवर फोर्स यू टू लर्न थिंग्स। सो इट इज यू हैव टू सेटल योर लाइफ, एंड फॉर दैट मैं ये भी कहूंगी कि कई बच्चे ऐसे हैं कि बीए के साथ, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि मैम मैं बीसीए कर सकता हूँ। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था मेरे पास, मैं अभी जस्ट स्प्रेडशीट देखी, तो उसमें मैं बता दूं बेटे, जिन बच्चों के पास +2 मैथमेटिक्स है और वो फर्दर अपनी लाइन चेंज करना चाहते हैं, दे आर गोइंग टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम, दे आर एलिजिबल फॉर दैट। वो एमसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है जिनके पास +2 विद मैथमेटिक्स है। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि मैम मुझे एनडीए डिफेंस में जाना है, तो डिफेंस के लिए भी बता दो बेटा। जो बच्चा एनडीए के लिए बच्चे का क्वेश्चन आया था, तो एनडीए में बता दो बेटा 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में बेटा आपका मैथमेटिक्स कवर होता है, पेपर 2 में आपकी जनरल एबिलिटी कवर होती है। जनरल एबिलिटी में बेटा 2 पार्ट्स होते हैं कि इंग्लिश का पेपर आएगा और एक आपका जनरल नॉलेज का पेपर आएगा। सो अगर आप, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैंने मैम डिफेंस की तैयारी करनी है तो एनडीए की तैयारी करनी है, ऐसा कर सकते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि फर्दर क्या और डिफिकल्ट हमारे लिए इजी क्या है, तो बेटा सीडीएस दे भी पेपर होंगे हैं। सीडीएस दे विच एमटीएस ਦਾ पेपर ਹੁੰਦਾ, एक ओटीए ਦਾ पेपर ਹੁੰਦਾ है। ओटीए ਦੇ ਵਿੱਚ मैथमेटिक्स नहीं ਹੁੰਦੀ। सो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ मैथमेटिक्स ਅਸੀਂ नहीं कवर कर सकते, तो ओटीए ਦਾ पेपर भी ਦਿੰਦੇ ਆ। बट सानू अज की डेट दे विच जानना जरूरी है कि अपने एम की है। पर जेडे बच्चों को हिस्टरी पोलिटिकल साइंस है, वो बच्चों को मैं डायरेक्टली कहूंगी कि बेटा यू मस्ट प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम। एंड जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया था टीचिंग प्रोफाइल के लिए, तो बेटा जेडे बच्चे टीचिंग लाइन का भी कई बच्चों ने क्वेश्चन किया कि गवर्नमेंट टीचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो फर्स्ट यू हैव टू डू बीएड करने के साथ साथ आपने पीटेट एंड सीटेट का सिलेबस साइमल्टेनियसली निकालना है और उसकी प्रेपरेशन करनी है। जैसे ह्यूमैनिटीज का आपका ग्रुप है, आपके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है, तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है बीएड में वो एसएसटी विद लैंग्वेज का बनता है। कई बच्चे करते हैं कि इकोनॉमिक्स को रख लेते हैं, तो एसएसटी विद इकोनॉमिक्स, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को रखते हैं। सो इस तरीके से वो उनका एक जो कहते हैं बाइफर्केशन ऑफ द सब्जेक्ट्स है वो बनता है। तो बीएड करते हैं वो मास्टर्स करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी एलिजिबिलिटी बनाते हैं। आपको ये भी बता दूं, जिन बच्चों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की थी, एमएचआरडी की गाइडलाइंस आ चुकी है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द पर्सन मस्ट हैव, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर तो डॉक्टरेट इज रिक्वायर्ड। आने वाले टाइम में डॉक्टरेट वो कंपल्सरी बनने जा रहा है। अर्लियर ये होता था कि जिनका मास्टर्स करने के बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई है तो वो एलिजिबल है फॉर पोस्ट ऑफ लेक्चरर, तो उनका पैनल सिलेक्शन हो जाता था यूनिवर्सिटीज की तरफ से। बट एमएचआरडी की न्यू गाइडलाइंस आ चुकी हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपने कॉलेज लेवल पर टीचिंग करनी है देन यू मस्ट हैव डॉक्टरेट डिग्री इन योर हैंड। तो इस तरीके से बेटा ये जिहड़ा कोर्स है, जिहड़ियां गर्ल्स भी मेरे नाल जुड़ियां हुई हैं बेटा, उन्हां नूं भी मैं दसदा। यूजीसी दे विच बेटा सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स भी हैं। अगर गर्ल्स विंग के स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो सुन ले, अगर कोई लड़की अपने मम्मी पापा का कल्ला बच्चा है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो जैसे कि एक जीआरएफ होल्डर को यूनिवर्सिटी रिसर्च करने के लिए ग्रांट देती है, स्कॉलरशिप देती है, सिमिलर उसी वे में सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स भी हैं गवर्नमेंट के पास, जो कि यूजीसी स्पॉन्सर स्कीम्स हैं जिसमें कि हमें फर्दर एडमिशन मिलती है। तो इस तरीके से बेटा आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हुण मैं थोड़ी देर लिए अपने आप को होल्ड करांगी एंड जेडे बच्चों का बेटा कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, यू मस्ट आस्क दैट क्वेश्चन।
प्लीज आस्क। मैम एएससी के लिए मैम रजिस्ट्रेशन कैसे होगी मैम? ASI कौन बोला था? वन बाय वन आप पूछिए, और जिसको नहीं पूछना है पूछने के बाद म्यूट जरूर कर लीजिए अपना माइक। आशु राजपूत, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये एक मेरे माइंड में सच और बात आ रही है जो बच्चों को नहीं पता होती। बेटे बच्चे ये सोचते हैं कि पीसीएस का एग्जाम देना या जो पीसीएस का एग्जाम देते हैं ये सिर्फ एडीसीज या एसडीएम्स की पोस्ट बनती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर हम पीसीएस के एग्जाम में अपीयर होते हैं और हमारे अगर लोअर रैंक्स भी आ जाते हैं तो बेटा पीसीएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਡ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਟੌਪ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਲੋਅਰ ਰੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਂਟਲ ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਬੀਏਐਮਐਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰ ਬੀਸੀਐਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਲਾਈਡ ਪੋਸਟ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ, तहसीलदार दियां, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दियां। सो इस तरह दियां पोस्टां बनदियां ने। तो कई बच्चों का माइंडसेट होता है कि बीडीपीओस की पोस्ट बनती है, तो मैम ये पोस्टों को लेने के लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए भी हमें पीसीएस का एग्जाम देना पड़ता है। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, बेटा क्वेश्चन रिपीट कर दो अपना। हाँ जी, any student is having any question, any doubt, any query, बेटा जरूर पूछो। मैम पीएससी के लिए मैम ब्रीफ कर दीजिए एक बार। पीसीएस या पीएससी? मैम एएससी। एएससी फुल फॉर्म बोलो। एएससी की फुल फॉर्म बोलो पहले आप। हाँ जी, इंडियन आर्मी सर्विसेज, ठीक है। सो सबसे पहले ये जो एएससी की जो रोल्स आते हैं ये इंडियन आर्मी सर्विसेज में आते हैं। ये आईएएससी होता है बेटा, इंडियन आर्मी सर्विस कॉर्प की पोस्टें बनती हैं, ठीक है। इसमें लुधियाना में आपको बताऊं, यहाँ पे एक अकेडमी है, वो बच्चों को जो +2 कर लेते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और इसके लिए आपको जैसे कि एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। डॉक्टर निधि, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, मे बी शायद वो प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करते हैं, तो कहते हैं कि दे आस्क फॉर एक्सपीरियंस, तो उनको हम कैसे गाइड किए रहे? इसमें सिर्फ दो बातें होती हैं, एक तो हम वहां पर बिल्कुल चुप बैठ जाएं, और एक अगर हम आंसर ये देते हैं देयर इज नो गैप इन माय स्टडीज, तो उसके एंड इफ यू गिव मी अ चांस आई विल डेफिनेटली प्रूव माई सेल्फ। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस टाइम पे हम आंसर क्या दे रहे हैं। कई ऐसी पोस्ट होती है जो मांगते हैं कि एक्सपीरियंस। येस्टरडे वी हैड वी इनवाइट वन कंपनी विद आईसीआईसी बैंक, तो बच्चों का माइंडसेट होता है कि जो बैंक की पोस्ट होती है उसमें सिर्फ बीकॉम कैंडिडेट्स ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो मेरे बाकी कॉलेजेस के साथ सेशन हुए हैं तो उनके जो मास्टर्स के बच्चे थे, इवन दे वर कम, उन्होंने जो अप्लाई किया था उन्होंने ये बताया कि बीए का बच्चा भी इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, बिकॉज उन्होंने पहले उनको ट्रेनिंग देनी होती है। अर्लियर वो ट्रेनिंग मेरठ में लगती थी, बट अब वो ट्रेनिंग मेरठ में नहीं, वो ऑनलाइन मोड पे ट्रेनिंग होती है। और जैसे कि एक बीकॉम कैंडिडेट को वर्क सिखाया जाता है, सिमिलर वैसे ही एक बीए ग्रेजुएट को भी वर्क सिखाया जाता है। एंड आफ्टर ट्रेनिंग जो उनका स्टार्टिंग पैकेज होता है वो 17,000 to 18,000 तक जाता है, और इंटरनल इनकी प्रमोशंस होती है, एंड दे गिव द टेस्ट एंड दे प्रमोट देमसेल्व्स। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता। हमारे पास जो आते हैं वो बच्चे वो फ्रेशर ही आते हैं और उनको जॉब्स में एनरोलमेंट मिलती है। मैम, एक करण का क्वेश्चन आया है कि आईएएस के लिए प्रिपरेशंस कैसे करें? जी, जो बच्चे आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पहले मैं दोनों में आपको डिफरेंस बता दूं। यूपीएससी और पीसीएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬੇਟੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 क्वेश्चन पंजाब ਦੀ जीके ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਗੇ। ऑलमोस्ट सिलेबस इज द सेम। सिलेबस आप निकाल लें, उसमें आपने 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटीज को रिवाइज कर लो,
अपना हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जितना भी हमारा जनरल स्टडीज का पार्ट कवर होता है बेटा। इसके बाद हमारे जो पेपर आते हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का आता है, एक आपका रीजनिंग का पेपर आता है, उसके लिए मैंने बुक्स बता दी है। RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग और RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी शुरू कर दो। पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए बुक आती है, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर की +1 एंड +2 की, आप उसकी NCERTs को डू रिवाइज दोज बुक्स। इंडियन पॉलिटिक्स की बुक आती है लक्ष्मीकांत की, जो कि पैरेलल है, दोनों में पढ़नी पड़ेगी। जो आप हमारे पास हमने हिस्ट्री टिल ग्रेजुएशन तक की है, हमें वी हैव टू रिवाइज दोस। और जिन बच्चों का IAS का एम है और उनके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या पॉलिटिकल है, they do their masters with history और political science so that की पैरेलल फॉर्म में उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट या हिस्ट्री का पार्ट रिवाइज होता रहे। इससे क्या होता है कि उनको जब अपना उनकी ओल्ड जो हमारी नॉलेज है, दे फैसिलिटेट आवरसेल्फ विद द न्यू कंसेप्ट, जो हम नई चीज कर रहे हैं। बेटा यही बात बता रही हूँ, बीटेक वाला बच्चा भी अगर इस तरीके से पेपर देता है तो उनका भी वो पेपर क्लियर होता है। एक बच्चे का क्वेश्चन था, इन विच कैटेगरी वी कैन अप्लाई एज BA स्टूडेंट विदाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड विदाउट एक्सपीरियंस। BA स्टूडेंट विदाउट कॉम्पिटिटिव आप अप्लाई कर सकते हो बेटा। BA वाला बच्चा कंपटीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे आपका BA कंप्लीट नहीं हुआ तो SSC दे बेटा CGL ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਹਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੁੱਕੇ 31 ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। CHSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ +2 ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ग्रेजुएशन तो बाद ਤੁਸੀਂ बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवेज, IRDA हर तरह का कंपटीशन के लिए एलिजिबल हो। इवन UPSC एंड PPSC बोर्ड्स से भी पेपर दे सकते हो। विदाउट एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, अगर पढ़ने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। पर यस, कुछ आने वाले टाइम के ऐसी भी पोस्ट गवर्नमेंट ने जनरेट की है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती है, पर उसमें उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया होता था दैट द पर्सन मस्ट हैव दिस 3 या 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। वो बेटा पोस्टां दे नाल उन्होंने क्वालिफिकेशन और रेंज काफी अप रखी होंदी है। सो इस तरह दी भी पोस्टां निकलदी हैं, हार्डली मैटर्स। यस, जनरल कैटेगरी के लिए जो पोस्ट निकलती है वो बता दूं बेटा, 27 मैक्सिमम तक तुसी कर सकते हो। SC कैटेगरी का बच्चा उन्होंने 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC की कैटेगरी का बच्चा तो 3 साल की रिलैक्सेशन है। सो कई एग्जाम्स है जो 21 तो तुसी एज तो शुरू करके 27 तक कर सकते हो, बट IAS एंड PCS जेडे पेपर है 37 ईयर्स तक कर सकते हो। सो जेड़ा एज क्राइटेरिया बेटा कुछ थोड़ा जा देख के आप अपने आप को जल्दी तो जल्दी अगर सेटल करांगे then it will be good for us. Yes, एक क्वेश्चन है, colored blind people can become bureaucrats like IAS. Is it possible? ऐसा कुछ नहीं है। IAS सभी जो मेहनत करेगा वो बनेगा, IRS भी बनेगा, IFS में भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बच्चे ये कहते हैं कि मैम सामने दसो मैम BC कैटेगरी के क्या मैम BC कास्ट के रिगार्डिंग क्या जॉब होती है? बेटा कास्ट दे रिकॉर्डिंगली जॉब नहीं होती, कास्ट दे अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन इन द एज होती है जब तुसी गवर्नमेंट दे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिने हो। फाइन। यस, ऐसा होता है कि जब हम कुछ जॉब प्रोफाइल में जाते हैं तो कुछ पोस्ट होती है वो जनरल कैटेगरी में होती है, कुछ पोस्ट होती है जो SC कैटेगरी को मिलती है, कुछ अदर स्टेट्स को मिलती है, कुछ ब्लाइंड के लिए होती है, कुछ PHCL के लिए होती है, जो कि फिजिकल चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए भी होती है। मैम डज NSS हेल्प इन UPSC? यस बेटा, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਦੋਸਤ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਯਸ NSS ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਬਿਕॉज वी आर फिजिकली फिट। मैडम एयर होस्टेज के लिए क्या करें? एयर होस्टेज सबसे पहले जो ये मैं लिख रही हूँ ना, बच्चे जो लिख रहे हैं, चलो एनीवे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि अभी आप ग्रेजुएट्स हो तो आपने जब भी कुछ भी लिखना है ट्राई टू राइट चैटिंग इन इंग्लिश। इफ यू आर गुड इन पंजाबी कैन राइट
थिंग्स इन पंजाबी। ये बात मैं आपको इसलिए समझाना चाह रही हूँ बिकॉज कल हम अगर प्राइवेट डोमेन में भी जॉब लेते हैं तो हमें अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी बेटा कन्वर्सेशन है, इट वोंट बी अ वर्बल कम्युनिकेशन, so we have to send certain mails to the authority. So for that we have to mend ourselves right now, that we have to prepare ourselves how we can write things. So ये सब तो इम्पोर्टेंट चीज है। मैम रेलवेज के एग्जाम के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए एस एग्जाम अकॉर्डिंग? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं सभी को बता दूं बेटा। रेलवेज, एसएससी, पीओ, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम आप देते हो, मैम आई एम टॉकिंग अबाउट एनएसएस एंड डज हेल्प इन पीसीएस टू। यस बेटे, मदद करदी है। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਟ डिपेंड्स कि अपन चेक करना पड़ेगा विद द ऑर्डिनेंसेस। यस, ये बच्चे ने बुक की बात की है, मैं बता रही हूँ आरएस अग्रवाल की बुक लो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड for quantitative aptitude. You can take RS Agarwal for verbal and non-verbal reasoning or any another book. It depends upon you कि आपने ये देखना है कि आपका रीजनिंग एस्पेक्ट कैसा है। थर्ड, इंग्लिश के लिए आप अपनी ग्रामर की इंग्लिश की बुक्स यूज करें, और यू कैन यूज इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की बेटा बुक आती है रेन एंड मार्टिन। और जनरल नॉलेज के लिए बेटा देखो, एक तो मंथली मैगजीन्स होती हैं, योग्यता दर्पण होता है, CSRs होती है, so you can do that or you can read the newspaper on daily basis। मैम लॉ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਈਏ? ਲॉ ਕਿਹੜਾ ਕਲੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਲੈਟ ਦਾ ਪੇपर ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਕੰਪੋनेंट्स ਉਹਦੇ ਚ ਆਣਗੇ। आई नेवर रिकमेंड कि अगर आपने बैंकिंग का पेपर देना है तो आप एक बैंकिंग की बुक लो, अगर आपने रेलवेज का पेपर देना है तो आप रेलवेज की बुक लो। आई नेवर एवर रिकमेंड दैट बुक। I recommend कि solve the RS Agarwal so that you can give any of the competitive exam। अगर आपने ये देखना है कि 10 ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, अगर आप फर्स्ट डे बेटा सिलेबस निकालोगे और 10 ईयर पेपर निकालोगे तो आपको नहीं समझ आएंगे। इट्स बेटर व्हाट यू हैव टू डू, आपने 10 ईयर पेपर को क्लियरली सॉल्व करना है। क्लियरली सॉल्व मतलब आपने हर कंसेप्ट को सॉल्व करना है, ओनली देन यू कैन सॉल्व द अनदर पेपर। हमें ये नहीं पता प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फॉर्मूला, हमें ये नहीं पता कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें ये नहीं पता स्पीड टाइम ट्रेवल के कैसे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो हाउ वी आर प्रिपेयरिंग। तो हमने व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम? जब बेटा बेस्ट टाइम होता है जब आपका विलिंगनेस होता है। अगर मेरा विलिंगनेस नहीं है, मैं सारा दिन बुक लेके बैठूंगी, मुझे समझ नहीं आएगा। When I am willing to do things, only I can do। सिमिलर यही बात हमारा PhD में होता है। When we do research, जब हम थ्योरीज निकालनी शुरू कर देते हैं या कोई भी कंसेप्ट निकालना शुरू होता है, हमें ये नहीं समझ आता कि हमने करना क्या है। बट once we do the data analysis, तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइट निकल आता है कि this is the thing what we have to acquire from the previous research, तो हम उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करते हैं। सो इस तरीके से बेटा जब तक आपकी विलिंगनेस होगी तभी आप वो चीज को करेंगे। मैम PSC के लिए कैसे प्रिपेयर करें? बेटा सब तो पहला 6 तो लेके 10 तक दी NCERTs, डू रिवाइज दो थिंग्स। दोज हु फील कि ਅਸੀਂ कोचिंग क्लासेस लगा लिए, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਮ ਨੇਵੀ और एयरफोर्स च जाना चाहते सी। अगले साल उस चीज की अकेडमी बन रही है, जिवें कि माई भागो बनी है गर्ल्स वास्ते। सिमिलर हुशियारपुर दे डिस्ट्रिक्ट दे विच बेटा स्टार्ट होने जा रहा है प्रोजेक्ट, और शायद तुसी सुनिया भी होएगा न्यूज़ दे विच। सो वी हैड अ लाइव विद द कैप्टन सर एंड चीफ सैकटरी पंजाब, एंड ओदे च बेटा उन्होंने अनाउंस किया सीगा ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ PCS या IAS ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, बहुत जल्दी इस तरीके का भी कोचिंग सेंटर DVs ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ताकि ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। पर टिल टाइम जब तक नहीं बनता, we have to prepare ourselves with the things what we have done earlier। ਸਾਨੂੰ रिविजन्स ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। एक बुक 6 ਤੋਂ लेके 10 तक दी बुक्स, 12 तक दी बुक्स रिवाइज करो। लक्ष्मीकांत दी पॉलिटिक्स दी बुक लो, RS अग्रवाल सॉल्व करो। द रीजन बीइंग ਤੁਹਾਡਾ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 2 पेपर ਹੁੰਦੇ ਹੈ। नंबर 1 जनरल स्टडीज का पेपर हुंदा है, नंबर 2 ਜਿਹੜਾ बेटा ਤੁਹਾਡਾ पेपर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CSET ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ डाटा इंटरप्रिटेशन ਦੇ 15 क्वेश्चन PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੈ। हमें सिलेबस कड्डो,
सी द 10 ईयर पेपर, सी द पैटर्न, क्या पैटर्न सीगा, पता है कि 15 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन ਦੇ ਆने हैं, ਤਾਂ RS ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰਸ ਆ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ। ਸੋਲਵ ਦੈਟ ਬੁੱਕ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। यस, ये मैं चीज जेडे बच्चे कर रहे हैं, मैम एनी फ्री वेबसाइट फॉर विच वी कैन डाउनलोड ऑनलाइन बुक्स? बेटा ई बुक्स डाउनलोड हो जाती है, मैं तुहाडे नाल लिंक शेयर कर दांगी सर नाल, जिन्ने भी ईवन तुहाडी बुक्स है, जो तुहाडी स्टडी दी बुक्स है, वो भी तुसी डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड NCERTs, सब कुछ इज अवेलेबल ऑन नेट। पर मैं ये नहीं रिकमेंड करांगी कि तुसी रीजनिंग ऑनलाइन मोड पे करो। बेटा जेडे बच्चे सोचते हैं कि ऑनलाइन जेडे चैनल्स हैं या असी सब्सक्राइब करके ओनू ज्वाइन करांगे, आई नेवर रिकमेंड दैट। ओदा रीजन ये है कि बेटा उस च दूसरे बंदे दा कॉग्निटिव डोमेन लगता है, उस च दूसरा बंदा अपना माइंड यूज कर रहा है। जब तक मेरे खुद दे हाथ च कॉपी पेन नहीं आएगा तब तक मैं अपना माइंड नहीं यूज कर रही, तब तक तो आप डब्बे च बैठे हैं। सो अगर मैं कोई भी सपोज मैनू लगता है कि इफ आई एम वेरी गुड इन रीजनिंग, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं खुद 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो सीरीज के, देखो 10 में से हमारे अगर 5 भी गलत है तो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। सो उसके लिए वी हैव टू डू प्रैक्टिस। मैम एक लास्ट ले लीजिए, जर्नलिज्म के रिगार्डिंग एक बच्चे ने पूछा। मैम जर्नलिज्म के बारे में नॉलेज दो। बेटे जनरल मास कमेंट जर्नलिज्म के कोर्सेज होंगे हैं, यू कैन डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आप कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज हैविंग सच कोर्सेज। इवन लास्ट मंथ एक पोस्टां भी निकलियां सी जिहदी रिक्वायरमेंट जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन सीगियां। सो इस तरीके नाल मैम यूपी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स जो IAS, JEE, नीट, PCS और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स ਲਈ बच्चों को फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। यस बेटे, जैसे यूपी गवर्नमेंट दे रही है वैसे पंजाब गवर्नमेंट भी ये इनिशिएटिव ले रही है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। पर यस, जो ये बैंकिंग, रेलवेज, एक्चुअली अभी जो पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है वो PGR काम मोहाली की तरफ से जो स्टार्ट हुआ है हमारे ऑफिस में, अभी लास्ट बैच खत्म हुआ है मार्च में, बिकॉज कोविड के कारण वो बैच बंद हो गया। ऑलरेडी लास्ट ईयर से हमारे ऑफिस में 4 बैचेस चले थे, जिसमें कि कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आफ्टर कॉलेज आवर्स के बाद ऑफिस में आके 50-50 बच्चों की क्लास लगती थी, जिनमें उनको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश करवाई जाती थी। बट ड्यू टू कोविड वो बंद हुई है। यस, अप्रैल में क्लासेस ऑनलाइन मोड पे चली थी, अब गवर्नमेंट फिर से एक इनिशिएट ले रही है, जो मेरे पास कल ही लेटर आई है कि बहुत जल्दी ऐसा बैच शुरू होंगे फॉर ऑनलाइन मोड। सो द स्टूडेंट्स फ्रॉम योर साइड, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन the classes for 2 hour duration, that is totally free of cost. But yes, आपकी अटेंडेंस जो रिकॉर्ड होगा वो मेरे पास डेली बेसिस पे आएगा, क्योंकि हमारी तरफ से बेटा पेमेंट जाती है। जब तक हम उनके बच्चों की अटेंडेंस देंगे तभी गवर्नमेंट उन बच्चों की जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे उनकी पेमेंट उस एजेंसी को करेगी। तो उसके लिए जो इंटरेस्टेड बच्चे होंगे जो कि 50 डेज की क्लासेस में रेगुलर होंगे, उन्हीं बच्चों को बेटा वो क्लासेस लगाने का बेनिफिट है। Is Unacademically good platform for, ये क्या is Unacademy good platform for SSC? देखो बच्चे, दो चीजें मैम, आज मैंने एडमिशन भी कोई सा एग्जाम देना होगा आफ्टर ग्रेजुएशन, JNU में एडमिशन के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा आफ्टर? JNU के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जिस कोर्स में पहले आप क्या करना क्या चाहते हो। इवन आप सभी बच्चे एलिजिबल है। आप अगर MBA भी करना है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कैट एंड मैट से करें। कई बच्चे ये सोचते हैं कि BA वाला बच्चा तो MBA के लिए एलिजिबल ही नहीं है। यू मस्ट गो विद दैट, आप कर सकते हो उसके लिए, पर आपने जो एग्जाम देना है बेटा वो कैट और मैट का देना है। कोशिश ये करनी है कि MBA जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो IIM से करनी है। IIM मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने बेंगलोर या पुणे या हैदराबाद ही जाना है, तो वो अमृतसर में भी IIM का सेंटर है, या पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से करनी है। आई नेवर रिकमेंड कि ये जो कई ऐसी यूनिवर्सिटीज भी ओपन हो गई हैं जो कि जस्ट गिव द डिग्रीज वो बच्चों को देती हैं, आई नेवर रिकमेंड दोस। बेसिक कोर्स रिक्वायर्ड आफ्टर ग्रेजुएशन, देन वी हैव नॉट स्ट्रगलिंग इन बेसिक कोर्स। तो बेटा ये है कि आप अपने क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश को फोकस करो और टेस्ट दो, सो दैट कि आप जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। आपको उसके लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट की क्लरिकल पोस्टें भी हैं, तो क्लरिकल पोस्टों में 2 इयर्स की प्रोबेशन के बाद तो 40,000 एक ऑलरेडी एक क्लरिकल स्टाफ ले रहा है, देन व्हाई नॉट वी हैव टू डू दैट।
हमें उसके लिए प्रैक्टिस मेहनत करनी पड़ेगी। पंजाबी टाइपिंग जरूर सीखो बेटे, मैं कहूंगी, ताकि तुसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਯੂ ਮਸਟ ਅਪਲਾਈ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਬੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਰੀਜ਼निंग ਦਾ ਪਾर्ट कवर होएगा। ओके मैम। मैम आप कोई मैम ऐसी चीज बताओ मैम जो मैम जनरल नॉलेज वगैरह का मैम हम बेसिस पे अपने मैम जो नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी होगी, उसके अलावा मैम हम एग्जाम उसको दे सकें कि मैम हमें कोई ग्रेजुएशन मान लो अगर कोई बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, तो हम कोई एडिशनल सब्जेक्ट कोई ऐसी चीज रखें कि मैम उसको आगे देखना ना पड़े कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। कहने मतलब ये है। हाँ, कहने का मतलब ये है, तो उसके लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि RS अग्रवाल सॉल्व कर दो, क्योंकि कोई भी एक मिनिमम भी कंपटीशन रेलवे का आएगा तो 25 क्वेश्चन उस बुक में से आ रहे हैं। अगर मुझे पता है कि 50 क्वेश्चन क्लियर करने हैं मुझे, तो मुझे वो चीज करनी पड़ेगी। बेटा देखो, सबसे बड़ा एफर्ट ये है कि हमें 2 घंटे हर रोज इन्वेस्ट करने हैं। अभी डॉक्टर निधि, हमने जी एक्चुअली मैम प्रिंसिपल थोड़े से बिजी है, इससे पहले वो हमें गुड बाय कहे, तो आई वांट कि एक बार सभी स्टूडेंट्स भी कैमरा ऑन कर ले सो दैट वी कैन हैव अ मेमोरेबल पिक्चर ऑफ टुडेज सेशन। जी, सो स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली टर्न ऑन योर कैमरास। बाकी सेशन कंटिन्यू रहेगा, अभी के लिए आप प्लीज कैमरा टर्न ऑन कर लीजिए। एंड आई रिक्वेस्ट डॉक्टर नैयर टू काइंडली टेक दिस पिक्चर। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Thank you, ma'am, principal. थैंक यू सविता मैम, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ हैं। थैंक यू निधि जी, बहुत अच्छा चल रहा है थोड़ा लेक्चर, बहुत ही अच्छा। आई डोंट वांट टू मिस, मैं थोड़े काम जरूरी जाना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी, थैंक यू। Yes, Dr. Nidhi, please continue. देखो बेटे, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਕਸੈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ BA ਕਰਨ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜੌਬਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੇਟਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ NTPC ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮ ਭਰੀਏ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, एंड दिस इज द राइट टाइम बेटा, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप कुछ अच्छा करिए, मेरे लिए बुक्स को स्टडी। मैम बच्चे का क्वेश्चन है, मैम कुड यू प्लीज अगेन सजेस्ट मी द बुक्स टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर IAS। मैं बता देती हूँ बेटा, NCERTs को रिवाइज कर लो ताकि आपके एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपको लगता है जनरल स्टडीज की प्रॉपर एक बुक भी आती है, पर मैं ये नहीं कहती आप एक बुक की तरफ अपनी नॉलेज सीमित रखें। आप अपने आप को पहले सिलेबस निकाल लें, उसके बाद आपने स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न देख लें कि किस तरह की क्वेश्चन की डिमांड होती है। फिर आपने NCERTs रिवाइज करनी है। NCERTs रिवाइज करने के बाद लक्ष्मीकांत की बुक लो पॉलिटिक्स की, जो पेपर 2 में आपके पेपर 1 में जो टॉपिक्स है उसमें पेपर 2 भी आता है। तो प्री के पेपर में जो आपका आता है उसमें बेटा आपका रीजनिंग का पार्ट आता है, क्वांट्स का पार्ट आता है, उसके लिए आप RS अग्रवाल साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, ਤੁਸੀਂ हिस्ट्री ਦੀ ग्रेजुएशन ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟਾ ਬੁੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ 2-2 3-3 ਚੈਪਟਰ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲਡ ਅਪ ਹੋ ਜੇ। ਕਦੇ ਵੀ IAS ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡਰਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਲਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਅਟੇਨਡ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰੋ, ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਕਵਰਡ ਦਿਸ, ਕਵਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ है। मैम रेलवेज के लिए जो बुक
स्टडी करनी है मैम, उसके नाम आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं रिकमेंड करती हूँ RS अग्रवाल, मैं लिख भी देती हूँ। RS अग्रवाल की बुक आती है बेटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसकी बुक आती है एक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। एक बुक आती है रेन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन की बुक आती है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, ठीक है। और जीके के लिए आई नेवर रिकमेंड वन बुक की एक बुक में सारी जीके कवर होगी। जीके इज अ वास्ट फील्ड, बट यस अगर आपका बहुत ही लेवल अभी पुअर है या आपने डे 1 से स्टार्ट करनी है तो बच्चे RS अग्रवाल की भी बुक लेते हैं, मनीराम अग्रवाल की भी बुक आती है, मनोरमा की भी ईयर बुक आती है। तो ऐसे सो मेनी बुक्स आर देयर इन द मार्केट। आप एक बुक ले लो कोई भी, उसको डू रिवाइज द थिंग्स, पर जब आप 6 से लेके 12 तक करेंगे रिवीजन तो ऑलरेडी आपका कवर होता जाएगा। एंड इसके साथ बेटा अगर आप साथ में चाहते हैं तो CSR मैगजीन्स की सब्सक्रिप्शन ले लें। कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यूज आपको पर मंथ में पता चल जाएगा कि क्या नया। अगर आप साथ में चाहते हैं तो CSR मैगजीन्स की सब्सक्रिप्शन ले लें। कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यूज आपको पर मंथ में पता चल जाएगा कि क्या नया अपडेट है, सो दैट कि इन फ्यूचर में आप ये योग्यता बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। पर हमने ये नहीं देखना, हमने ये देखना है कि हम थोड़ा थोड़ा करते भी जाएंगे और साथ के साथ हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट्स भी कवर होते जाएंगे। जर्नलिज्म आप कर रहे हो, जर्नलिज्म से रिलेटेड बुक्स जो बच्चा पूछ रहा है, आप जर्नलिज्म आप किस फील्ड में हो आशु? आशु अनम्यूट करके मैम से बात कीजिए। हेलो मैम। जी मैम एड-इन कोर्स रखा हुआ है जर्नलिज्म बीए के साथ में। देखो अभी आप BA कर रहे हैं, अगर हमने जर्नलिज्म में पहले एडमिशन लेंगे तो उनका जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होगा दे विल टेल यू द बेस्ट बुक्स इन जर्नलिज्म। पर अगर आप मार्केट से वैसे ऐसे बुक्स पढ़ना चाहते हो सो देयर आर सो मेनी बुक्स इन द मास कॉम एंड जर्नलिज्म। आप एक बार लाल बुक डिपो पे जा सकते हैं, दे आर हैविंग n नंबर ऑफ बुक्स, तो दे विल प्रोवाइड यू द बुक, उसमें कोई इशू नहीं है। जर्नलिज्म के अकेली बुक इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, अगर आपने इस फील्ड में अगर आगे जाना है या जर्नलिस्ट बनना है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश एक्सेंट। अभी के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, DGP की ऐसे राइटिंग की बुक आती है DGP, उसमें देखो कितने सारे एसेज हैं, कोई भी एक टॉपिक उठाओ उनमें से या उनको पढ़ो, उन तरह की वोकैबुलरी को अपना पार्ट बनाओ, डिफिकल्ट वर्ड्स को मार्क करो फ्रॉम द न्यूज़पेपर, यूज द लेक्सिकल रिसोर्सेज व्हाइल राइटिंग। सो इस तरीके से बेटा आप अपना एक्सेंट इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले द कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट इन ऑर्डर टू गो इन एनी ऑफ द स्ट्रीम। वैसे तो सभी फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन अगर स्कूल टीचर में भी बच्चे टीचिंग में जाते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर व्हेन आई वाज अ प्रिंसिपल, तो मेरे पास अगर पंजाबी का भी टीचर आता था, ओनली देन आई एक्सपेक्ट कि बंदे को उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए है, बिकॉज पेरेंट्स इज हैविंग द डिमांड कि हमारा बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो इंग्लिश सीख के आए। सिमिलर यू पीपल, जैसे बच्चे मैसेजेस करते हैं, देन आई मस्ट रिकमेंड कि अगर आप मैसेजेस करते हो ट्राई टू राइट चैटिंग इन इंग्लिश, नॉट विद मी। आप अभी से डू हैबिट, अपनी हैबिट डालो बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ डू चैटिंग इन इंग्लिश। क्या होगा, स्टार्टिंग में टेंसेस ही गलत हो जाएंगे, पर डे बाय डे आपकी वोकैबुलरी का पार्ट इंप्रूव होता जाएगा। न्यूज़पेपर रीडिंग दी हैबिट पाओ, न्यूज चैनल्स CNBC BBC वर्ल्ड जरूर सुनो। स्टार्टिंग से तो नहीं समझ आएंगे, पर एक टाइम आएगा 10 दिन तो बाद कुछ वर्ड्स थोड़े माइंड च पैने शुरू हो जाएंगे। सो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में एनहांस करो बेटा। Yes, any more question? So, Dr. Nidhi, would you like to take up more questions because we are already running out of time? Sir, no issues. If a student is having certain doubts, I'll dare to handle that. But yes, कई बच्चे ऐसे भी होंगे, those who feel hesitate to ask me the question, they have my number. I've already mentioned it in the chat box. और बेटा, you all the best, but try to invest your time in a productive manner.
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ कोशिश करा करो कि डू इंट्रोस्पेक्शन ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स, कि मॉर्निंग में या नाइट आवर्स में आपने जो सोचा क्या आपने वो अचीव किया। टाइम बेटा दो तरीके नाल हुंदा, एक वेस्ट हो गया, एक यूज हो गया, एक इन्वेस्ट हो गया। तुसी यूज कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो। मैम टेक्स्ट योर नंबर अगेन, टेक्स्ट कर दिंदे आ जी तुहानू नंबर, कोई गल नहीं। यस इट्स 9872808647। तो आपने ये चीज बेटा बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि आप अपना टाइम को इन्वेस्ट कर लो अभी से, उसको वेस्ट मत करो। ये जो एक टाइम निकल गया वो वापस नहीं आना। और कई बार हम ये बोलते हैं पेपर देके बस एक क्वेश्चन तो रह गए। कई बच्चे कहते हैं पेपर बहुत अच्छा आया, बहुत इजी था, और कई बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आया। बेटे ये जो हमारा सेल्फ है, वी हैव टू, हम अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए वी ऑलवेज डिफेंड आवरसेल्फ। अगर हमें कोई चीज नहीं आती, मैं हमेशा क्वेश्चनिंग क्यों करती हूँ, अभी की ओपन क्वेश्चन राउंड आई चैलेंज क्यों लेती हूँ, उसका रीजन है इन केस अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो मैं क्या करूंगी, उसको कभी ना कभी गूगल पे सर्च जरूर करूंगी, सो दैट कि मेरा डाउट क्लियर हो जाए वंस, बिकॉज आई हैव टू टेल टू द स्टूडेंट। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग एन नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, ताकि मैंने पता चले बच्चों का माइंडसेट, बच्चों का माइंड की चल रहा है, और मैं अपना किते ना किते नॉलेज एनहांस कर रही हूं। सिमिलर यू पीपल अपनी नॉलेज ਨੂੰ एनहांस ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ। ਰੋਲ ਮॉडल if you want, you set ours, any of the person, your principal, your teacher as a role model, but effort आपका खुद का है, आपको करना पड़ेगा। and those who feel कि कई ऐसी जॉब होते हैं मैम जहाँ पे सिर्फ अप्रोच लगती है, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसी जॉब्स हैं अप्रोच के बिना भी होती हैं, पर उसमें आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है बेटा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई विश यू टू हैव सक्सेस इन योर लाइफ, एंड अपने आप ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦੋਜ਼ ਗੋਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग है या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट तो प्रोवाइड करा रही है, अपने आप पार्टिसिपेट करवाओ, इन अपॉर्चुनिटीज नु अचीव करो। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू रोहित सर। Yeah, thank you, Dr. Nidhi, for sparing your valuable time to educate, informate, sharing the information on all the aspects to cover for the getting the job to our students. So I, from the core of my heart, really indebted for you. And on the behalf of College Management Committee, IQAC, the counseling cell, I once again thank you, ma'am. And I'm sure our student really got benefited from your lecture today. Thank you once again, ma'am. And we will wish you to have among us again. And I think even our students can even visit your office also, if you don't mind. हाँ श्योर सर, एनी टाइम दे कैन विजिट, पर राइट नाउ कोविड के कारण पब्लिक डीलिंग बंद है। But yes, those students, even we are having a very good library, having a books of all the competitive exams. Those students who wish to use our library, they can come. But after ये जो situation अभी चल रही है, तो उसके कारण हमने अभी वो बंद किया हुआ है। That will be for the students only. Thank you one and all. Thank you. Bye, ma'am. Thank you.